Hello children, this is Poonam Bagga welcoming you once again in your maths class. We are studying class 10th maths and today we are going to start a new chapter, chapter 7, coordinate geometry. We all know that geometry is that branch of maths that deals with lines, curves, shapes and figures. But what is coordinate geometry? Coordinate geometry is yet another branch of maths and it is an algebraic tool for studying geometry of figures through the coordinates of its points. So here again we will be studying geometrical figures but this time with the help of the coordinates of its points, and this study is known as coordinate geometry or analytic geometry. It is also said to be an algebraic tool because here algebra will also be involved. We will be representing the unknown quantities by the variables and then we will be finding their values as per the question. So here either we may be given a geometrical figure, say this one, and then we will be studying it with the help of the coordinates of its points. It has 4 points here at the corners, and by considering the coordinates of these points we will be studying this figure or similar figures, or we may be given a few points. Say here we have 3 points. Then after joining these points we may get one geometrical figure and then we will be studying this figure with the help of the coordinates of its points. So basically here the coordinates are involved and we all know what are the coordinates of a point. We have learnt about this in class 9th also, and also in class 10th itself. We have done chapter 3 where we plotted a lot many points and then we drew graphs of linear equations in 2 variables. So you are familiar with points and their coordinates. In this video also we will be revising all these basic concepts once again so that if you have missed out somewhere you can recall everything once again. Now basically coordinate geometry starts with the location of a point. And how to locate a point? To locate any point we need some reference point and also a reference line, and the very basic reference line is our number line where we take the number 0 in the center and then we take numbers with positive values towards its right and negative numbers towards its left. Now how to use this number line in practical life situations? Let us consider this situation where we have a few houses along the side of a road. सड़क के किनारे यहाँ पर कुछ घर हैं, ये पोस्ट ऑफिस भी है, बैंक भी है. Now you want to tell the location of your house to your friend. Let us suppose that this is your house. Now how will you tell the location of your house to your friend? If you consider the post office as the reference point, then you will say that your house is at the second number from the post office, and in doing so you are actually using a number line. अगर आप पोस्ट ऑफिस को रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं तो इसे आप नंबर देंगे 0, ये हो गया नंबर 1 पर, ये हो गया नंबर 2 पर, then we have number 3, number 4, number 5. So actually you are using a number line to tell the location of your house. Now if you take the bank as the reference point, this is again your house, and now you want to tell the location of your house in terms of the bank. Then how will you tell? If you say that your house is the first after the bank, then is this the exact location of your house? Obviously not. अगर आप कहेंगे कि बैंक से फर्स्ट घर मेरा है तो यहाँ पर आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि ये घर भी तो बैंक से फर्स्ट प्लेस पर है. तो यहाँ आपको डायरेक्शन भी बताना होगा कि टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड इट इज़ द फर्स्ट हाउस, तब आप यहाँ पर ये वाला हाउस बता पाएंगे. और ऐसे केस में आप फिर से एक नंबर लाइन यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर रेफरेंस पॉइंट हमने बैंक को लिया है तो ये तो डिनोट कर रहा है नंबर 0 को, और क्योंकि अब हमें लेफ्ट साइड में जाना है तो दिस विल बी डिनोटेड बाय नंबर -1. Here we have -2, here -3, and towards the right we can take 1 and 2 and so on. So here again you are using a number line to tell the location of your house. This is an example of one dimension. What if you stay in an apartment in a multi-story building? Suppose this is your house. This is your house. This time how will you tell the location of your house? Obviously it is the third one, first, second, third.
लेकिन अगर आप कहते हैं कि थर्ड हाउस मेरा है, तब क्या आप अपने घर की एग्जैक्ट लोकेशन बता पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप देखिए ये सभी थर्ड हाउस ही तो हैं अपनी अपनी रोज में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सभी अपनी अपनी रो में थर्ड हाउस हैं। तो यहाँ पर आपको थर्ड हाउस बताने के साथ साथ कुछ और भी बताना पड़ेगा, और वो क्या है कि कौन सी फ्लोर पर आपका हाउस है। दिस इज द ग्राउंड फ्लोर, then this is the first floor, this is the second floor, this is the third floor, this is the fourth floor. So to tell the location of your house, you need to mention two numbers. First you have to tell that it is the third house and it is on the fourth floor. So in this way you are taking the help of two numbers to tell the exact location of your house, and in doing so you are actually using two number lines. Which are those two number lines? Here you are using one vertical number line in this way and one horizontal number line in this way. Now taking this ground floor, here we can write the number 0 for the ground floor, then this is given by number 1, the first floor, the second floor is given by number 2, then the third floor is given by number 3, the fourth floor is given by number 4. So here you are using one vertical number line, and also we are using one horizontal number line, where this first column is being represented by number 1, then number 2 represents this second column, and number 3 represents this third column. So here we are using actually two dimensions, one along the length and the other along the breadth, which is represented by a rectangle. And so here comes the concept of rectangular coordinate axis. Two mutually perpendicular lines XOX dash and YOY dash passing through any point O in the plane of the paper are called coordinate axes. So here we have two axes. One is this one, horizontal axis or horizontal number line, and this one is the vertical number line. So these are two mutually perpendicular lines. Mutually perpendicular means जो एक दूसरे के perpendicular हैं, 90 डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ये दोनों लाइंस. So these two lines which pass through any point O in the plane of the paper are called coordinate axis. ये कहलाती हैं coordinate axis. और जब हम इस सिचुएशन की बात कर रहे थे तो हमने एक एक्सिस तो ली यहाँ लेंथ के अलोंग और एक एक्सिस ली हमने ब्रेड्थ के अलोंग, और तब हम अपने घर की एग्जैक्ट लोकेशन बता पाए. नाउ हियर द हॉरिजॉन्टल लाइन XOX डैश इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस. तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, एंड द वर्टिकल लाइन YOY डैश इज कॉल्ड द वाई एक्सिस. ये वर्टिकल लाइन है YOY डैश, ये हो गई आपकी y एक्सिस. यहाँ पर XOX डैश दिस इज योर x एक्सिस एंड YOY डैश दिस इज योर y एक्सिस. ऑल्सो द पॉइंट O इज कॉल्ड द ओरिजिन. ये जो पॉइंट है दिस वन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन. I hope everything is clear up till now. Now we talk about the coordinates of a point. How to talk about this? Let me change the color of my pen. Yes, let us take one point here, this point. Now we can indicate this point by using two numbers. इसकी लोकेशन बताने के लिए हमें two numbers चाहिए होंगे. अभी जैसे हम अपने घर की लोकेशन बताने के लिए two numbers यूज़ कर रहे थे, इसी तरह से इस पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए भी हमें यहाँ पर two numbers चाहिए. पहला नंबर हमें कैसे मिलेगा? अगर हम इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, स्ट्रेट लाइन ड्रॉप करें, तब हमें यहाँ पर नंबर मिल रहा है 2, तो 2 इसका हो गया एक कोऑर्डिनेट. इसी तरह से अगर हम इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें वाई एक्सिस पर, तो हमें नंबर मिल रहा है 1, और सेकंड इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1. इस तरह से एक पॉइंट के हम लेते हैं दो कोऑर्डिनेट्स. पहला कोऑर्डिनेट कैसे मिलता है? जब हम एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, और दूसरा कोऑर्डिनेट मिलता है जब हम वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं. वाई आर वी टेकिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस? बिकॉज every time the perpendicular distance is the shortest distance between a point and a line. किसी भी लाइन और पॉइंट के बीच में जो perpendicular distance है वो shortest distance होता है, इसीलिए हम perpendicular
ड्रॉप करके ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं. बाय परपेंडिकुलर आई मीन अ लाइन ड्रॉपिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ठीक है. नाउ वी आर हैविंग टू नंबर्स टू टेल द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट, से P. इसको नाम दे दिया P. अब ये जो दो नंबर्स हैं जो इस पॉइंट P की लोकेशन बता रहे हैं, ये कहलाते हैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स. और ये जो फर्स्ट नंबर है, जब हम बात करें 2,1, so this first number is called the x coordinate, or we also call it as abscissa. And this second number, it is called the y coordinate, and the other name for it is ordinate. ठीक है. x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट नंबर को, और सेकंड नंबर जो है वो कहलाता है y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट. और ये हमें कैसे मिल रहा है? जब हम पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं x एक्सिस पर तो x कोऑर्डिनेट मिल रहा है, और जब हम उसी पॉइंट से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है y कोऑर्डिनेट. इज इट ओके? सो हियर वी कैन राइट द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट P in the plane with respect to the coordinate axis is represented by a unique ordered pair x, y called its Cartesian coordinates. इन्हें हम कहते हैं पॉइंट P के, ये हो गए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. तो यहाँ पर आप देखेंगे हर पॉइंट के लिए हम एक ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं. ऑर्डर पेयर मतलब पहले हम लेंगे x कोऑर्डिनेट और फिर हम लेंगे y कोऑर्डिनेट. आप एक और पॉइंट ले सकते हैं. लेट अस टेक वन मोर पॉइंट, से दिस वन. अब आप इसकी लोकेशन बताइए क्या होनी चाहिए. पहले हम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये हो गया, दिस विल बी -4, एंड देन द अदर वन, इसके लिए हम y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये हमें मिल रहा है नंबर 2. सो इफ वी गिव दिस नेम एज पॉइंट R, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R आर -4, 2. तो हर पॉइंट के लिए हम एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर लिख सकते हैं. समझ में आई आपको बात? नेक्स्ट इट इज गिवन कन्वर्सली व्हेन वी आर गिवन एन ऑर्डर्ड पेयर x, y and a Cartesian coordinate system, we can locate a point in the plane having coordinates x, y. अब अगर इसका रिवर्स हो, हमें कोऑर्डिनेट्स पहले दिए हैं और अब हमें वो पॉइंट लोकेट करना है, तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. सपोज वी आर गिवन कोऑर्डिनेट्स -1, 4, तो क्या हम इस पॉइंट को यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं? देखिए आप x एक्सिस पर तो आपको देखना होगा -1, ये है x एक्सिस और इस पर -1 की पोजीशन यहाँ है, और y एक्सिस पे आपको देखना होगा नंबर 4. तो देखिए x पर -1 और y पर 4. दिस इज द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट विच हैज बीन आस्क्ड. ठीक है, इसको नाम दे देते हैं से T. सो दिस इज योर पॉइंट T with the coordinates -1, 4. इसी तरह से अगर हमें दिया है पॉइंट से 2, -3, तो क्या हम इसको भी लोकेट कर सकते हैं? Obviously we can do 2 on the x axis and -3 on the y axis. You will get the point somewhere here. 2, -3. यहाँ से 2, यहाँ से -3. तो अगर हमें कोई पॉइंट दिया है तब तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, एक सेट ऑफ वैल्यूज लिख सकते हैं. पहला कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट होगा y कोऑर्डिनेट. और अगर हमें ये सेट ऑफ वैल्यूज दिया है x और y, या कह लीजिए कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तब हम ऐसा एक पॉइंट भी यहाँ ग्राफ पेपर पर लोकेट कर सकते हैं. तो बोथ वेज वी कैन फॉलो. इज इट ओके? नाउ वी डिस्कस rectangular Cartesian coordinate system. The system of coordinating an ordered pair x, y with every point in a plane is called the rectangular Cartesian coordinate system. ये सिस्टम जहाँ पर हर पॉइंट को हम एक सेट ऑफ वैल्यूज अलॉट कर रहे हैं, उसकी पोजीशन बता रहे हैं बाय टेकिंग अ पेयर ऑफ वैल्यूज x, y. इस सिस्टम को हम कहते हैं rectangular Cartesian coordinate system. Why is it named so? It is named after a French mathematician, René Descartes, and it is after his name that it is known as Cartesian coordinate system. Is it okay? Now let us take some major points in this system. The distance of a point from the y axis is called its x coordinate or abscissa.
अभी हमने क्या बात की एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा की, कि अगर हम पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो जो नंबर हमें मिल रहा है वो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ हमें एक और बात बताई जा रही है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इट इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। देखते हैं इसे ग्राफ पेपर पर देखते हैं। हियर लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट P वंस अगेन 2,1। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। जस्ट हैव अ लुक, ये हो गया y एक्सिस से डिस्टेंस और ये कितने यूनिट्स हैं, इट इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो यही 2 यूनिट्स जो x कोऑर्डिनेट है ये क्या है एक्चुअली, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस एंड सो इट इज नोन एज x कोऑर्डिनेट, बट इट्स डेफिनेशन इज डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। तो x कोऑर्डिनेट कैसे मिल रहा है हमें, जब हम उसका डिस्टेंस देख रहे हैं y एक्सिस से। इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस, इसके लिए लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन। यस, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस, ये कितना हो गया, ये हो गया, और ये कितना है, इट इज नथिंग बट 1 यूनिट। देखिए आप 1 यूनिट, और ये हमें दे रहा है y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट एक्चुअली हमें कैसे मिल रहा है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस। ये एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी भी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उसका y कोऑर्डिनेट। और अगर उसका हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, तो क्या आंसर आएगा, x कोऑर्डिनेट। और आप इस फिगर से इजीली देख सकते हैं। टेक वन मोर केस, यहाँ पर लेते हैं हम ये पॉइंट R। अब हम बात कर रहे हैं इसके x कोऑर्डिनेट की, जो कि है -4। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है। एंड यू कैन सी द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस इज दिस वन विच इज नथिंग बट 4 यूनिट्स। ये माइनस साइन को हम यहाँ पर नहीं लेंगे डिस्टेंस के केस में, क्योंकि माइनस हमें सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, जो साइज है डिस्टेंस का, वो तो 4 यूनिट्स ही है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो रहा है इस पॉइंट R का फ्रॉम द y एक्सिस, इट इज 4 यूनिट्स। और इसी तरह से ये जो y कोऑर्डिनेट है ये हमें किससे डिस्टेंस बताएगा, x एक्सिस से। यू कैन सी हियर वी हैव दिस वन distance from the x axis and it is nothing but equal to 2 units as you can see। तो ये जो y कोऑर्डिनेट है ये इंडिकेट कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द x axis। Getting it clear? We come back to our major points. Here they are. The distance of a point from the x axis is called its y coordinate और ordinate। तो यहाँ पर दो बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है। x कोऑर्डिनेट है तो डिस्टेंस किससे लेना है, y एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। और अगर y कोऑर्डिनेट है तो डिस्टेंस किससे देखना है हमें, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, दिस इज c फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। x कोऑर्डिनेट कंसिडर कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस हो गया उस पॉइंट का y एक्सिस से, y कोऑर्डिनेट कंसिडर कर रहे हैं तो ये हो गया उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x, 0। x एक्सिस पर जो भी पॉइंट लेंगे हम उसका फॉर्म होगा x, 0। अब x तो क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट हो गया उस पॉइंट का, और ये 0 क्या है, y कोऑर्डिनेट। और इसका मतलब x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो रहा है। लेट अस गो बैक टू आवर ग्राफ पेपर। दिस इज योर x एक्सिस। इस पर अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे, सपोज वी टेक दिस पॉइंट, नाउ व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। ऑब्वियसली ये x एक्सिस पर है तो पहला नंबर तो हो गया 3, और जब हम यहाँ से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये यहाँ पर आ रहा है 0 नंबर पर, और ये हो गया 0 y कोऑर्डिनेट। तो x एक्सिस पर आप कोई भी पॉइंट लेंगे उस केस में y कोऑर्डिनेट हमेशा आपको 0 मिलेगा। और x एक्सिस की इक्वेशन भी यही होती है, y इक्वल टू 0। इसी तरह से y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे आप तो उसका x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा कह लीजिए वो 0 होगा। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट लें अगर हम यहाँ पर,
इट्स कोऑर्डिनेट्स विल बी, बताइए एक्स एक्सिस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, देखिए ये एक्स एक्सिस पर, तो ये 0 पे जाके मिलेगा, सो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0, और वाई एक्सिस पर तो ये -2 पर है ही इसकी पोजीशन, सो इट विल बी 0, -2। तो ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, हम बार बार मैं रिवाइज करवा रही हूँ, आपको कन्फ्यूजन रहती है हमें। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 लेंगे, क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर में उसमें ये इन्फॉर्मेशन बार बार अप्लाई होगी, तो प्लीज़ रिमेंबर on the x axis the y coordinate is 0 and on the y axis your x coordinate is 0. On the x axis ordinate is 0 and on the y axis abscissa is 0. तो किसी भी वर्ड्स में आप याद करिए, पर आपको समझ में आना चाहिए कि फिर से देखिए x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, नेक्स्ट वी टेक वन मोर पॉइंट हियर। The coordinates of a point on the y-axis are of the form 0, y। ये अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि y-axis पर हमेशा हमारा एब्सिसा 0 होगा और ये तो वैल्यू डिपेंड करेगी ऑन द लोकेशन ऑफ द पॉइंट। जैसे अभी हमने लिया था 0, -2, तो उस केस में y की वैल्यू हो रही थी -2। तो कोई भी जनरल पॉइंट लेंगे अगर हम y-axis पे, तो x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और y कोऑर्डिनेट हमने यहाँ वैल्यू दे दी है y इन जनरल। इसी तरह से x एक्सिस पर जनरल पॉइंट हो गया x, 0। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0, 0। जो हम यहाँ ओरिजिन देख रहे हैं, ये पॉइंट O यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0। मतलब x भी 0 है यहाँ पर और y भी यहाँ पर 0 है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 0। ये ओरिजिन की, ठीक है। ये सम ऑफ द बेसिक इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, जिसे आपको अच्छी तरह से दिमाग में क्लियर रखना है। नेक्स्ट वी ट्राई अ फ्यू क्वेश्चंस। लेट अस डू दीज क्वेश्चंस। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 7, 2 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चंस आपके 1 मार्क क्वेश्चंस हैं जो अक्सर क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं और हम तब घबरा के इसका आंसर नहीं लिख पाते हैं। तो अभी फिर से क्लियर कीजिए इसको। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 7, 2 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस से, तो कौन सा कोऑर्डिनेट आंसर देगा हमें? y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट इसका है 2, तो इस केस में डिस्टेंस हो जाएगा 2 यूनिट्स। बात आ रही है समझ में? डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, तो हम लेंगे y कोऑर्डिनेट। देन द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। अब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो आंसर आएगा x कोऑर्डिनेट, और वो यहाँ पर है 7, और साथ में हम लगा देंगे यूनिट्स, 7 यूनिट्स होगा डिस्टेंस। देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2, 3 फ्रॉम द x एक्सिस। तो देखिए आप x एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? यस, इट विल बी द y कोऑर्डिनेट एंड इट इज इक्वल टू 3। तो डिस्टेंस हो गया 3 यूनिट्स। एंड देन द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। y एक्सिस से डिस्टेंस के लिए हम लेते हैं x कोऑर्डिनेट, और वो यहाँ पर है -2, पर डिस्टेंस हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और ये हो जाएगा आपका 2 यूनिट्स, क्योंकि माइनस तो हमें डायरेक्शन बता रहा है, जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एंड सो इट विल बी 2 यूनिट्स। अगर आप ये पॉइंट देखें भी -2, 3, तो आपको समझ में आएगा कि हम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। -2 एंड देन 3, दिस वन इज द पॉइंट, -2, 3। तो देखिए आप इसका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस आपकी ये है और ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और ये कितना है? 3 यूनिट्स। देखिए यहाँ से 3 यूनिट्स आ रहा है। और जब हम डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो x कोऑर्डिनेट आएगा जो कि है 2, और ये डिस्टेंस हो गया फ्रॉम y एक्सिस यहाँ से। तो मैग्नीट्यूड तो 2 यूनिट्स ही है, और इसलिए हमने लिखा 2 यूनिट्स। माइनस को आप डायरेक्शन से कंसर्न करिए, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा 2 यूनिट्स। गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट वी हैव सम मोर क्वेश्चंस। यस, व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट क्या होगा किसी भी पॉइंट का। ऑर्डिनेट का मतलब y कोऑर्डिनेट, and obviously on x axis y will be always equal to 0, and so the answer is 0. ये जो ऑर्डिनेट है हमेशा कहाँ पर? x एक्सिस पर होगा इक्वल टू 0। इसी तरह से what is the abscissa of a point on the y axis? y एक्सिस जो वर्टिकल लाइन है हमारी स्ट्रेट, उस केस में जो एब्सिसा है वो क्या होगा? x कोऑर्डिनेट क्या होगा? ऑलवेज ऑन द y एक्सिस
x will be equal to 0. So here again the answer is x equal to 0 on the y axis. ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, x एक्सिस पर y 0 होगा, y एक्सिस पर x 0 होगा. क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर. इसी तरह से x एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे तो आंसर क्या होगा? y कोऑर्डिनेट. और y एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे किसी भी पॉइंट का तो आंसर क्या होगा? x कोऑर्डिनेट. ठीक है. नेक्स्ट वी टेक द केस ऑफ क्वाड्रेंट्स. The two axes xo x dash and yo y dash divide the plane into 4 regions called the quadrants. अब देखिए, जब हमने ये एक्सेस ड्रॉ किए, x एक्सिस और y एक्सिस, xo x dash yo y dash, तो ये जो रीजन है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. और इसी को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. इस पूरे का फर्स्ट पार्ट जो 1/4 है, ये हो गया सेकेंड पार्ट जो अपने आप में 1/4 है इस पूरे रीजन का. ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, इस पूरे रीजन का ये अपने आप में 1/4 है. और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट जो पूरे रीजन का अपने आप में 1/4 पार्ट है. और इसीलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं क्वाड्रेंट. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, रिमेंबर ऑलवेज. दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. Let us take one point in each of these quadrants and decide the sign of the coordinates of a point in any of these quadrants. Here, let us take this point. Now, if we want to write the coordinates of this point, how we will write? X coordinate पहले लिखते हैं और वो कैसे मिलेगा? Point से x axis पर perpendicular drop कीजिए, नंबर मिल रहा है 1. So the first coordinate is 1. फिर यहीं से y axis पर perpendicular drop कीजिए, you will get the number 2. तो y coordinate हो गया 2. और आप देखेंगे यहाँ पर दोनों ही कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, x कोऑर्डिनेट भी और y कोऑर्डिनेट भी. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं, प्लस एंड प्लस. ठीक है. नेक्स्ट वी टेक अ पॉइंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. लेट अस टेक दिस वन. इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए. x कोऑर्डिनेट, व्हेन वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द x एक्सिस इट इज -2. ठीक है. और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो 1 मिल रहा है हमें. तो आप क्या देख रहे हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में हर केस में जो x कोऑर्डिनेट है वो तो नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव होगा. तो जो साइन होगा वो इस फॉर्म में होगा, माइनस एंड प्लस. देन इन केस ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, लेट मी टेक वन मोर पॉइंट हियर, लेट दिस बी द पॉइंट. देन इट्स कोऑर्डिनेट्स ऑन x एक्सिस इफ वी ड्रॉप द परपेंडिकुलर, तो यहाँ से मिल रहा है -2 और y एक्सिस के केस में भी हमें मिल रहा है यहाँ से -3. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा इन केस ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट. एंड सो वी कैन राइट बोथ द कोऑर्डिनेट्स विल बी नेगेटिव. ठीक है. देन वी कम टूवर्ड्स दिस फोर्थ क्वाड्रेंट. लेट मी टेक वन पॉइंट, दिस पॉइंट हियर. 3 विल बी द x कोऑर्डिनेट एंड -2 विल बी द y कोऑर्डिनेट. तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है. So here we will have, let me rewrite it, positive sign for x coordinate and negative sign for y coordinate. तो ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही के साइन x और y कोऑर्डिनेट्स के, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, दोनों के साइन पॉजिटिव होंगे. सेकेंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा तो नेगेटिव होगा लेकिन ऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव होगा. थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव होंगे. और फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में एब्सिसा तो पॉजिटिव होगा लेकिन आपका ऑर्डिनेट नेगेटिव होगा. नेक्स्ट वी हैव सम मोर इन्फॉर्मेशन. इफ द एब्सिसा और x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, इट वुड लाई समवेयर ऑन द y एक्सिस. बिल्कुल सही. यहाँ क्या कह रहे हैं कि किसी भी पॉइंट का अगर एब्सिसा 0 हो, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है 0,5, यहाँ पर एब्सिसा 0 है, तो अब ये पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा? क्योंकि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, ये 0 है तो ये ऑब्वियसली लाई करेगा समवेयर ऑन द y एक्सिस. क्योंकि y एक्सिस पे y तो 0 नहीं हो सकता, x ही 0 हो सकता है और x 0 है तो ये हो गया केस जो पॉइंट लाई करेगा y एक्सिस पे. इसी तरह से इफ द ऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, लेट अस टेक द केस 5,0. यहाँ पर कौन 0 हो रहा है? ऑर्डिनेट, या कह लीजिए y कोऑर्डिनेट, ये 0 हो रहा है. तो अब ये कहाँ पर लाई करेगा? दिस विल लाई ऑन द x एक्सिस पे, क्योंकि x की कुछ वैल्यू हमें दिखाई दे रही है.
तो ये ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है। यहाँ पर हमें y की कुछ वैल्यू दिखाई दे रही है तो ऑब्वियसली इट विल लाई ऑन द y एक्सिस और यहाँ पर एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट 0 है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी कैन डू वन क्वेश्चन। हियर इट इज, ट्राई दीज। In which quadrant or on which axis will the following points lie? -3, -7। अब आप देखिए यहाँ पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव हैं, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई होना चाहिए ये पॉइंट? ऑब्वियसली इट शुड लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट जहाँ पर दोनों ही नेगेटिव हैं। एक्स एक्सिस जो आप लेफ्ट साइड में लेंगे और वाई एक्सिस जो आप ओरिजिन से नीचे लेंगे, दोनों ही केस में हमें यहाँ क्या मिलेगा? नेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा, और ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, देन वी टेक दिस नंबर -2 एंड देन 5। दिस इज द पॉइंट -2, 5। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सोचिए, आप बताइए मुझे। यहाँ पर एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव है, लेफ्ट साइड में जाएगा ओरिजिन से, और ये पॉजिटिव है तो ओरिजिन से ऊपर जाएगा, तो ये कौन सा केस हुआ? दिस विल लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट 0 एंड -6। यहाँ पर कौन 0 है? x इज 0। ये किसकी वैल्यू है? x। और ये किसकी वैल्यू है? y। तो y तो 0 नहीं है, तो y एक्सिस पर ये लाई होना चाहिए। y 0 नहीं है, x 0 है, तो ये किस पे लाई होना चाहिए? ऑब्वियसली ऑन y एक्सिस। ठीक है, क्योंकि x 0 है तो ये लाई करेगा y एक्सिस पे। देन वी टेक 5, 3, दोनों ही पॉजिटिव हैं। इट इज़ द केस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा। 4, -2, x तो पॉजिटिव है तो ओरिजिन से राइट साइड में सोचिए आप, और y नेगेटिव है ओरिजिन से नीचे, तो ये केस बन रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट का। एंड देन 4, 0, y 0 है और y 0 किस पे होता है? x एक्सिस पे, तो ये पॉइंट लाई करेगा आपका x एक्सिस पर। ठीक है, it will lie on the x-axis. I hope all this concept is very much clear to you, and now on the basis of all these concepts we will be doing the following things in this chapter. We will be learning in this chapter to find the distance between two points whose coordinates are given. दो points दिए होंगे हमें और इनके coordinates भी हमें दिए होंगे, और इनके बीच का ये distance निकालना सीखेंगे हम in this chapter. Then the coordinates of the point which divides a line segment joining two given points in the given ratio. अगर दो points हैं, उनको join करने वाली line segment को कोई तीसरा point बीच में से divide कर रहा है कोई given ratio में, तो हम इस point के coordinates निकालना भी यहाँ से सीखेंगे इस chapter में। And then we will learn to find the area of a triangle formed by 3 given points. अगर हमें 3 points दिए हों तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं जब हमें तीनों ही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हो, तो वो भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप। So this was all in today's video. In this video we recalled all the previous concepts that we were already known to, and today we learnt just revised them. Okay, then in our next class we will take up distance formula and start this chapter with all new information. Okay then, goodbye.